Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is calculation of GPA, SGPA and CGPA. The particular topic related to B.Ed semester 2 paper number 8 assessment for learning and the unit number is unit 5. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ B.Ed सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर नंबर 8 जो कि यूनिट 5 का एक टॉपिक है। यानी मैं आपसे कैलकुलेशन यानी जीपीए, सीजीपीए और एसजीपीए की गणना की बात करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने सीजीपीए या जीपीए और एसजीपीए इन सभी के बारे में उसकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, उसकी परिचय है, वह मैं आपको दे चुका हूँ। ये सभी क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन के अंतर्गत आते हैं। क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन में एसजीपीए के क्या महत्व है, सीजीपीए क्या है, उसके बारे में मैं बताया हूँ। जब जीपीए यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज इन द सेंस दैट मीन्स यू हैव टू यूज इन द रिजल्ट on the basis of your performance, that is on the basis of your result as per the subject wise। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार आपकी जो परफॉर्मेंस होती है रिजल्ट यानी परिणाम में, उसके अनुसार स्केल में यानी पॉइंट में से मेंशन किया जाता है। उसके बाद इसके आधार पर 9.5 से, जो कि मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, उसे डिवाइड कर फुल परसेंटेज प्राप्त किया जाता है। सीजीपीए या एसजीपीए दैट मीन्स सेमेस्टर बेस्ड जो पॉइंट एवरेज है, उसमें भी ये प्रणाली इसी का उपयोग जीपीए के आधार पर प्रयोग किया जाता है। फिर सीजीपीए की भी गणना की जाती है। तो तीनों की गणना अलग अलग है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना समझना अति आवश्यक है। मैं एक बार पुनः बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि छात्र क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन में छात्र सब्जेक्ट के वेटेज के अनुसार उनको अध्ययन करते हैं, उन्हें पढ़ाई का एक समय दिया जाता है और दबाव रहित एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि छात्र अपने परफॉर्मेंस को स्वयं आकलन असेसमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके अनुसार अपनी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इसे और विस्तार से बताने। नाउ अगेन वेलकम टू वीडियो लेक्चर क्लास B.Ed सेमेस्टर 2 पेपर 8 assessment for learning. Now in this regard, the topic first I will describe in English and after that describe in Hindi. Calculation of GPA, SGPA and CGPA. Marks calculation is an important aspect of college and school life. Although there are numerous methods of carrying out the same task, the most used method of score calculation is the GPA method. Next point, the one aspect of this method that appears a little confusing but is a perfectly simple concept is the conversion of SGPA to CGPA. Third point, even though both the concept of SGPA and CGPA serve a similar purpose, they differ from each other and are calculated separately and through different methods. Next point, before we move on to how to convert SGPA to CGPA, let us understand individually what the terms SGPA and CGPA mean. Now, first I will clarify GPA, grade point average. First point, GPA in simple terms is grade point average, that is the average of all the grades given to a student throughout the semester, or can also be calculated in terms of studying different courses that the student has opted for. Next point,
Most importantly, GPA shows the achievement level of a student as well as their scholastic abilities, thus helping teachers assess their performance over a stipulated time period. Next point, Indian grading system uses a 10-point GPA scale, and to obtain your GPA from percentage, you need to divide percentage of marks by 9.5. The GPA is equal to percentage divided by 9.5. Now, SGPA, semester end grade point average. First point, before delivering into the discussion of SGPA and CGPA, let us first understand what these two mean. Next point, to begin with, the marks we score in our schools or colleges can be calculated in different ways. One of these ways include SGPA. Now, SGPA is the abbreviated form of Sessional Grade Point Average / Semester End Grade Point Average. Next point, it is the grade point average that is calculated at the end of an academic session, like a year at school or a semester at college. Next point, first, adding the grade point of all the subjects in an academic year or session are collected together, and then their average is calculated, which is referred to as the SGPA for that particular year or session. Now, ऑल मैटर इन हिंदी. अब मैं सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं. GPA, SGPA एंड CGPA की गणना. सर्वप्रथम, अंकों की गणना महाविद्यालय और विद्यालयी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है. यद्यपि एक ही कार्य को करने के कई तरीके हैं. स्कोर गणना की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि GPA विधि है. सेकेंड पॉइंट, SGPA से CGPA में रूपांतर पद्धति का एक पहलू जो थोड़ा भ्रमित करता है लेकिन बिल्कुल सरल अवधारणा है. नेक्स्ट पॉइंट, SGPA एंड CGPA दोनों अवधारणाएं एक समान उद्देश्य से काम करती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से भिन्न होती हैं और अलग अलग तरीकों से और अलग अलग गणना की जाती है. इससे पहले कि हम SGPA को CGPA में रूपांतरित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से समझे कि SGPA और CGPA का क्या अर्थ है, क्योंकि नहीं समझेंगे तो कन्फ्यूजन बना रहेगा. इसलिए आवश्यकता इस चीज़ की है कि पहले इस चीज़ को समझाया जाए. बट उसके पहले GPA क्या है थोड़ा मैं उसे बता दूं. ग्रेड पॉइंट एवरेज, अर्थात GPA सरल शब्दों में ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी सेमेस्टर में एक छात्र को दिए गए सभी ग्रेडों का औसत या इसकी गणना विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्ययन के संदर्भ में भी की जा सकती है जिसे छात्र ने चुना है. नाउ नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि GPA एक छात्र के उपलब्धि के स्तर के साथ साथ उनकी विद्वतापूर्ण क्षमताओं को भी दर्शाता है और इस प्रकार शिक्षकों को एक निश्चित समय अवधि में उनके प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करता है. नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय ग्रेडिंग प्रणाली 10 बिंदु पर GPA पैमाने का उपयोग करती है और आपके GPA को प्रतिशत से प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिशत के निशान को 9.5 यानी प्रतिशत को 9.5 से विभाजित करना होगा. यानी GPA इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 9.5. अब SGPA यानी सेमेस्टर एंड ग्रेड बिंदु औसत, अर्थात सेमेस्टर और ग्रेड बिंदु औसत. फर्स्ट पॉइंट, SGPA और CGPA की चर्चा में सर्वप्रथम पहले समझ लें कि इन दोनों का क्या मतलब है. हमारे महाविद्यालय यानी विद्यालय और महाविद्यालय में
हम जो अंक प्राप्त करते हैं उनकी गणना अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है। इनमें से एक तरीका SGPA भी शामिल है। SGPA ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमेस्टर एंड ग्रेड पॉइंट एवरेज का एक संक्षिप्त रूप है। यह ग्रेड बिंदु औसत है जो एक शैक्षणिक सत्र के अंत में स्कूल में एक वर्ष या कॉलेज यानी महाविद्यालय के एक सेमेस्टर के रूप में गणना की जाती है। सबसे पहले एक शैक्षणिक वर्ष या सत्र में सभी विषयों के ग्रेड बिंदुओं को जोड़कर एक साथ एकत्र किया जाता है और फिर उनकी औसत गणना की जाती है, जिसे उस विशेष वर्ष या सत्र के लिए SGPA के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः मैं SGPA के बारे में विस्तार से बताया उसके बारे में। अब SGPA निकालने की जो विधि है वह अगले क्लास में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। नाउ आपने अभी देखा कि मैंने GPA के बारे में और उसके बाद SGPA के बारे में, उसके क्या तरीके हैं, क्या उसका आधार है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में बताया। साथ ही इसकी गणना की जो प्रक्रिया है, SGPA कैसे निकाला जाता है और CGPA, उसकी तो मैं बात अगले क्लास में करूँगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि GPA यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जिसमें कि छात्र अपनी उपलब्धि को देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। साथ ही SGPA सभी सेमेस्टर के जो मार्क्स है जोड़कर एक एवरेज निकालने का तरीका है, जिसको कि छात्र सेमेस्टर वाइज चीज़ों को एक औसत के आधार पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें स्पष्ट हुई। अगले क्लास में मैं SGPA की गणना विस्तार से कैसे निकाला जाता है, साथ ही SGPA से CGPA का कन्वर्शन और उसके डिफरेंसेस GPA, SGPA, CGPA में क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।